डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम थी। ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज एन intracellular oxidation process in which the complex organic substance are broken down into the simpler substance with a stepwise release of energy. Okay, this is a definition of respiration. It is an intracellular oxidation. Intra means in, cellular means cell. Okay, सेल के अंदर. Okay, oxidation process. Oxidation means what? Addition of the oxygen और the oxygen का यूज करना. Okay, किस चीज के लिए? To convert the complex organic substance into the simpler substance. अब complex organic substance means जो हम लोगों ने फूड में लिया है वो, और उसको simpler substance करना है. बट क्यों करना है ऐसा? To release the energy. So here definition of the respiration is, it is an intracellular oxidation process in which complex organic substances are broken down into smaller substance with the stepwise release of energy. So here the cells are taken the oxygen which is inhaled by the nose and use it for the broken down of the complex organic substance into the simpler substance. And it is also takes place in a stepwise manner so that the energy is released from this one. So it is a definition of respiration. Then here raw material is that the glucose and oxygen, that is we are required here. That is, these are the complex material, that is glucose and oxygen which is taken by the nose. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं. ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं? 38 ATPs जो हमारी एनर्जी होती है, दैट इज अ 686 किलो कैलोरी एनर्जी एंड 2870 किलो जूल. ये जूल में दी हुई है, ये किलो कैलोरी में दी है, और ये एटीपीज में दी है. ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट किए मैंने, क्योंकि ये बहुत बार नीट में पूछा जाता है. 38 ATP is equal to how much kilocalorie? So 38 ATP is equal to the 686 kilocalorie, or 38 ATP is equal to how much kilojoule? So 38 ATP is equal to the 2870 kilojoules energy. So here it is to be the produce of the 38 energy, and byproduct is a carbon dioxide जो हम लोग एक्सेल कर देते हैं, जो हम लोग हमारे बॉडी से रिलीज कर देते हैं. So this is a in short, the raw material for the respiration is glucose and oxygen. Product is the energy, the 38 ATP, and byproduct is the carbon dioxide. Then the reaction. See here what is taken place whenever we are respire. So here this is the glucose molecule C6H12O6. Then this is the carbon dioxide. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे. अब इसको ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या हो रहा है? यहाँ पे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ये जो H2 है ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में क्या हो रहा है? हमें 38 ATP का क्या है? एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, 38 ATPs. सो हियर ये जो हमारी रिएक्शन है, इसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं, और एक कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर में ब्रेक डाउन कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे एटीपी रिलीज करनी है. हमको एटीपी रिलीज करनी है क्योंकि हमें वो एनर्जी के लिए चाहिए, हमारे वर्कआउट करने के लिए चाहिए, हमें हमारे सेल को एनर्जी के लिए ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपलर में कन्वर्ट करना पड़ता है. और इसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग
और रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। सो इन द रेस्पिरेशन the complex glucose molecule broken down into the simpler molecule, that is water and carbon dioxide with the energy, but this carbon dioxide is released from our body. Then here respiration involves the gases exchange, external respiration and internal respiration. External respiration, the expiration which taken place by the nose. हम हमारे नाक से जो respiration करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, that is called the external respiration. And second one is the internal respiration. Internal means cellular respiration. हमारे सेल के अंदर क्या होता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करता है। आरबीसी कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। तो ब्लड में जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है हर एक सेल के पास। तो हर एक सेल जो है वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन लेने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, अगेन वो ब्लड में जाता है, ब्लड में से वो लंग्स में आता है और लंग्स में से हम लोग रिलीज करते हैं। तो ये जो चीजें होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सो हमारे पास दो टाइप का है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इसके बाद में ये जो है कैटाबोलिक प्रोसेस है, यहाँ पे है एक्सर्गोनिक प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस, दो प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे पहले प्रोसेस में है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर वन बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वन एंड सेकंड में वहां पे वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें वहां पे हो रही है। कैटाबोलिक मींस ब्रेकिंग डाउन, एनाबोलिक मींस सिंथेसिस। तो यहाँ पे कैटाबोलिक प्रोसेस हो रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसके बाद में टू टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। ये बहुत बार 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन और डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको यहाँ पे इतना लिखना है, सिर्फ ये 2 लाइन और ये रिएक्शन। तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means the oxidation of glucose with the help of the atmospheric oxygen is called as a aerobic respiration. तो यहाँ पे aerobic में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नोस्ट्रिल से हम लोग ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन इनहेल करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। किस चीज का हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेक्स प्लेस and due to that one the oxygen is utilized to breaking down the complex glucose molecule into the simpler one. तो यहाँ पे रिएक्शन भी बताइए। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है, ये ऑक्सीजन की रिएक्शन इस ग्लूकोज के साथ में हो रही है और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATPs। जो हमें एनर्जी रिलीज करनी है वो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। Then second one is the anaerobic respiration, the partial oxidation of the organic food in absence of the atmospheric oxygen is called as a anaerobic respiration. So यहाँ पे हम लोग here, यहाँ पे जो है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे प्लस CO, यहाँ पे 6O2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 6O2 नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे C6H12O6 जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है और 2 ही ATP मिल रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की यूटिलाइज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर मिल रहा है हमें सेकेंडली, और 38 ATP, कितनी सारी एनर्जी मिल रही है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन हम नहीं लेते तो बॉडी में क्या बनता है, अल्कोहल, C2H5OH। ये फॉर्मूला क्या है, इथिल अल्कोहल का है। तो ये अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है लेकिन एनर्जी बहुत बहुत कम बन रही है। तो जब हम लोग
विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करेंगे या फिर जिस रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व नहीं होता है, इन absence ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो दीज आर द टू रिएक्शंस. दिस इज अ रिएक्शन ऑफ द aerobic respiration and this is for the anaerobic respiration. So you remember both reactions. Number of time it is comes in the 1 mark question. Complete the reaction. Aerobic respiration, they given this one and you have to complete this one. So even in case of anaerobic, they are given this one and you have to complete this one. So the number of times the student is confused and they write this in the aerobic as well as to the anaerobic, so that times it is goes to the wrong. Okay, so remember both reaction. It is very simple reaction. Here is the oxygen is evolved, here is not, and you must be right in the reaction in the balance form. That is the 6CO2, then 6O2, then 6H2O and 30 ATP. अगर आपने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी, then even your marks will be deducted. So that you have to write the balance reaction. यहाँ पे भी देखिए twice C2H5OH है, फिर 6CO2 है, उसके साथ में 2 ATP है. तो ये बैलेंस रिएक्शन आपको लिखना बहुत जरूरी है. These two reactions are very very important in the respiration. So type of respiration are two types: aerobic respiration, anaerobic respiration. These are the two reactions. Any doubt regarding this? Any doubt regarding this? मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ ना, उस टाइम पे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं, नो मैम. हाँ, तो वो मैं बताती रहती हूँ कि आपको ये एमसीक्यू में कैसे आएगा, 1 मार्क के लिए कैसे आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन में कैसे आएगा. तो वो आप लोग वहां पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप बोर्ड के टाइम पे आते कि मैडम इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे मुझे नहीं इतना सब में पूरा चैप्टर नहीं बता सकते आप लोगों को कि हमारे इतने 15-16 चैप्टर में से इसमें से ये आएगा. लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये नीट में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, कंप्लीट द रिएक्शन, ये वाली एरोबिक एनारोबिक वाली. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बच्चे हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन की ये जो रिएक्शन लिख के रखती है, जबकि ये रॉन्ग होती है. यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. और डिफाइन में 1 मार्क्स के लिए डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन और बहुत कम टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाता है. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है. तो दैट इज ऑल्सो द वन टाइप. 3-4 जो सेंटेंस एक्सप्लेन एवरीथिंग इनसाइड दैट